Hello people, welcome to Prep UG. Today we'll start with the verbal classes, okay? We've not had any full length video on verbal topics. So I was pretty confused as to what should I start with, but then I thought I'll start with something really interesting and which is a topic where you can definitely fetch marks but tricky hota hai, right? We end up making tiny errors here and there. So let's see how we can make that better after today's lesson. So today we are going to focus on subject verb agreement, definitely a few rules that we need to know, and then some interesting practice questions. Okay, why do we lose easy marks? Because tricky grammar traps. No matter if you've been worshipping Renan Martin over the years, still there is a possibility that you're going to end up making those tiny errors here and there. Okay, confusion between looks right versus is right, ये मैंने बहुत सुना है. ये सुनने में सही लग रहा है, जरूरी नहीं हमेशा सही हो. Okay, so we need to know a few ground rules. That is extremely important. We learn rules and exam traps. We'll learn what are the rules, okay, and where do we exactly make mistakes. So let's say next 15 minutes में हम try करेंगे कि जो important rules है वो हमें पता होने चाहिए, application examples हमें पता होना चाहिए और कुछ questions हमें पता होना चाहिए. Okay, so what you learn the subject verb agreement rules, high frequency exam traps. Where do we exactly end up making mistakes? कहाँ गलतियाँ होती है? Okay, some practice questions that I have for you, and I definitely have some challenger questions for you. Now this is one section where you will put your understanding to the test. Okay, all right. Subject verb agreement. From the name itself, it is very clear what are we dealing with. We are dealing with a subject. Subject मतलब main character energy, जिसके बारे में बात हो रही है. Verb, action words. Okay, and then there are helper verbs also like is, was, and all of that. Agreement. That means whenever we construct a grammatically correct sentence, the subject and verb must agree with each other. ये basic rule है. अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है ना वो अपने आप में गलत हो जाएगा. ओके, व्हाई दिस इज ट्रिकी? सरफेस लेवल पे यही रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो सिंगुलर है, ऑब्वियसली वी विल हैव अ सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. सरफेस लेवल पे बहुत इजी है, देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर. गलती क्यों होती है? इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट क्या है. सेकेंड, there are certain exceptions, or let's say there are some rules which are, let's say, universal truth kind of rules, just like the sun rises in the east. तो ये rules के against हम नहीं जा सकते. तो कभी कभी जब वैसे questions आ जाते हैं ना हम confuse हो जाते हैं, right? अभी देखो, सबसे basic से start करते हैं, एकदम basic. singular subject है. subject क्या है? student. student के बारे में बात हो रही है. the student studies hard. ये singular है, right? जिसके बारे में बात हो रही है ये singular है, तो ये जो हमारा वर्ब होगा ये भी डेफिनेटली सिंगुलर ही होगा. ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, स्टूडेंट्स. दैट मींस ये हो गया प्लूरल. दिस इज प्लूरल. सो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगा. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, एस जहां पे वर्ब में लगता है ना वो सिंगुलर होता है, एंड विदाउट द एस द वर्ब इज प्लूरल. स्टडीज इज सिंगुलर, स्टडी इज प्लूरल. ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये उल्टा होता है एक्चुअली, जो हम नंबर्स के केस में पढ़ते हैं ना उससे उल्टा होता है. देखो, विदाउट एन एस सो वर्ब विल बी विद एन एस, विद एन एस सो वर्ब विल बी विदाउट एन एस. ये ध्यान रखना, ये बेसिक एकदम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. ओके, डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, स्पेस के हिसाब से मैं लिख देती हूँ उसको. ओके, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. क्यों है ऐसा, ऐसा ही क्यों होता है, कब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे हमारे पास. जैसे ये आप देखोगे ना, एवरीवन, ईच, समवन, नोबडी, ये सारे सिंगुलर होते हैं. whenever they are used in a statement they are singular and hence they will take the singular form of the verb. जैसे each of the players is excited. अब बहुत सारे लोग ना प्लेयर्स को देख के यहाँ पे आर लगा देते हैं. दिस इज इनकरेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अलग से बात हो रही है. द प्लेयर्स आर एक्साइटेड बट ईच ऑफ द प्लेयर्स इज एक्साइटेड. कैसे याद रखते हैं, मैं इसको इस तरह विजुअलाइज कर लेती हूँ. ईच मतलब आप समझ लो छोटे छोटे टुकड़ों में या डब्बों में मैंने इसे बांट दिया कि बहुत सारे हैं,
बट मैं एट अ टाइम एक को ही ले रही हूँ यहाँ से, आई टेक वन, देन अनदर वन, देन अनदर वन, देन अनदर वन, तो हर एक के साथ कौन सा जाएगा? सिंगुलर। जब मैं एक एक टुकड़े में बात करती हूँ तो सिंगुलर जाएगा, राइट? तो ईच देखते साथ ये विजुअलाइज आप कर लो दैट यू आर सेगमेंटिंग स्टफ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम अलग अलग से। तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, नॉट प्लूरल। एवरीवन इज हैप्पी, रिमेंबर एवरी के पीछे वन है ना, ऐसे याद रख लो, एवरी के पीछे वन है, वन मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर इज सिंगुलर वर्ब, इस तरह याद रख लो। ईच को विजुअलाइज कर लो, एवरीवन, समवन, जहां जहां वन है उसको इस तरह से याद रख लो कि वन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं लगाना है। रिमेंबर ये वाले ट्रैप में नहीं फंसना कि ये प्लेयर्स तो प्लूरल है तो इसको देख के मैं आर लगा दे रहा हूँ, नो नो, डोंट डू दैट। सब्जेक्ट इज ईच ऑफ द प्लेयर्स टेकन सेपरेटली, ओके ओके। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। जब हम अ नंबर ऑफ ऐसा करके स्टेटमेंट बोलते हैं ना तो दैट टेक्स अप अ प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, देखो जब मैं ऐसी तरह से सेंटेंस को मैं बोल रही हूँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स डेफिनेटली मोर देन वन, राइट? एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब ये मत बोलना कि ये अ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सिंगुलर क्यों नहीं, डोंट डू दैट फॉर इंग्लिश, ओके? यहाँ पे वन यू नो साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं लगा सकते, इसलिए मिस्टेक्स होती है ग्रामर में। टेक ईच एग्जाम्पल सेपरेटली, एक साथ उसको क्लब नहीं करना है, ओके? तो अ नंबर ऑफ, जैसे ये दिमाग में रखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स मुझे एग्जैक्टली मे भी नहीं पता कितने बच्चे, बट अ नंबर ऑफ देम, क्वाइट अ फ्यू टाइप, ओके? तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, द जहां पे लग जाता है ये डेफिनेट हो जाता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, this will take up singular, the number of will take singular because there is a specific total, see is 50, it is specific, it is definite, the number of, a number of will take plural। अब देखो दोनों याद रखने की कोशिश मत करो, एक याद रखो जो आपको याद रहता है, अ नंबर ऑफ याद रहता है तो द उसका उल्टा होगा, द याद रहता है तो अ उसका उल्टा होगा, कोई एक याद रखो दूसरा अपने आप आपको पता है, ओके? डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं दोनों याद रखूं एंड देन यू नो आई एम गोइंग टू मेस इट अप, डोंट डू दैट। Remember one and the other one, obviously the next alternative is going to follow, okay okay। Phrases, this is important, along with as well as, they don't change the subject, this is distractor type of question। distractor मतलब सब्जेक्ट कुछ और होता है, साथ में along with कुछ और होता है, and that changes the nature of the verb sometimes। so क्या होता है, राम along with his friends is coming, ना बहुत सारे लोग यहाँ friends देख लेते हैं, प्लूरल है, आर लगा देते हैं, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल along with, this is the additional part of the statement, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अभी भी राम ही है, और राम क्योंकि सिंगुलर है, this will take up a singular word, not the plural one। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ कौन आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ओके? राम के साथ कौन आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, subject is Ram, okay? The captain as well as the players, कैप्टन के साथ प्लेयर हो, कैमरामैन हो, ऑडियंस हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट कौन है? द कैप्टन। तो कैप्टन इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगेगा? was tired, see was, okay? रुको मैं सेंटर कर देती हूँ स्क्रीन को, आई थिंक दिस इज मच बेटर, ओके? द कैप्टन इज सिंगुलर, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर, हेंस ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर ही होगा, ओके? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, तो एज वेल एज यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इसको देख के प्लूरल नहीं लगाना है, याद रखो दीज आर ट्रैप्स। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर ही होगा। सो एज वेल एज एंड अलॉन्ग विद दे फॉलो द सेम पैटर्न, ओके? एंड दीज आर डिस्ट्रैक्टर्स, दैट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसका हमारे लिए कोई काम नहीं, दे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द करेक्ट आंसर, ओके ओके। ईच ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ईच अगेन सेगमेंट, ईच मतलब मैं इसको इस तरह विजुअलाइज करती हूँ, सेगमेंट्स है, स्ट्रिप्स है, कुछ भी बोल लो। हर एक बुक, ईच ऑफ द बुक्स, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ईच ऑफ के साथ यहाँ प्लूरल होता है बट यहाँ सिंगुलर होता है, ओके? तो ईच ऑफ द बुक्स, हर एक बुक को हम अलग अलग विजुअलाइज कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं,
but each one of them when taken separately is new. Okay, each of the books, हर एक बुक अलग अलग से विजुअलाइज करो, अलग अलग से काफी सारे बुक्स है आपके पास शेल्फ पे, टेबल पे, each of them is new. Okay, तो each followed by this plural noun and then it is going to take up a singular subject. Okay, singular word, sorry. Okay, now this is very interesting. इसका हमेशा, क्योंकि ये context, this is context based, कुछ collective nouns होते हैं, right? Team, jury, all of this, ये कभी singular लेगा, कभी plural लेगा. When, depending on how they are functioning. If they are functioning collectively as a unit, or let's say jury, and they have taken a decision unanimously, मतलब एक साथ, so उसमें हम singular लेंगे. The jury has reached a verdict. And if they disagree as a team, तो वहां पे हम plural लेते हैं, because they are going in separate directions, they are not behaving as a collective, they are behaving as separate units, individual units. तो जहां पे वो individual units की तरह behave करेंगे, although it's a collective noun, we are going to take the plural form. And when they are behaving like a collective unit, एक direction में जा रहे हैं, एक decision को support कर रहे हैं, वहां पे हम लेंगे singular form. Okay, so the jury were divided in their opinion. Were क्यों? Because they were divided, अलग अलग. And the jury has reached a decision. अगर decision पे आ गए हैं unanimously, so has. सिर्फ jury इसका example नहीं, इसका example team भी हो सकता है, इसका example committee भी हो सकता है. Wherever you know there are group of people who have formed an organization of sorts, या एक साथ वो function कर रहे हैं, वहाँ पे ये valid है. Okay, so depending on the context, if they are working together, singular, working separately, individually, plural, right? Very interesting this is. Okay, this is another important example. Not only but also, एक fixed structure है कि not only is always followed by but also. Not only the teacher but also the students are going. इसको याद रखना. Not only and but also it is going to agree with the nearest subject. जो nearest होगा. अगर ये plural है but also के बाद तो are है. अगर ये सिंगुलर है, सी दिस इज सिंगुलर, तो ये इज है. ये याद रखना. नॉट ओनली बट ऑल्सो इज गोइंग टू अग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट. ये डिस्ट्रैक्टर के ऑपोजिट जा रहा है कि बीच में जो भी उसको मतलब नहीं है, जो सामने है एकदम अलॉन्ग विद एज वेल एज, उसके उल्टा है ये. नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. ओके, फिक्स स्ट्रक्चर है एकदम. ओके, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, बट they have an s, no, तो लोगों को लगता है ये प्लूरल है, बट all of these are always going to take up a singular verb. मैथमेटिक्स क्योंकि एक सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एथिक्स, न्यूज, all of these, you know, they are going to take up singular verb because they are treated as a singular subject. So the news is shocking. बहुत सारे लोग इसमें r लगा देते हैं because यहाँ पे s है तो they feel it's plural. No, news is always singular. Mathematics is a difficult subject. Physics is an interesting subject. Ethics is important. Although they have an s, it's not plural in essence. It's singular. Okay? Okay, now I have a few questions for you so that you can practice. देखो, कुछ क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके ओके, नीदर ऑफ देम क्या होगा बताओ? इज होगा, आर होगा. नीदर, ईदर ये सारे सिंगुलर होते हैं. ओके, जब हम यूनिट्स में उनको डिवाइड करते हैं तो ये होगा नीदर ऑफ देम इज फिट. द न्यूज, आर नहीं, इज या वॉज जो भी है. ओके, द न्यूज इज ट्रू. अ नंबर ऑफ काउस, रिमेंबर अ नंबर, द नंबर, अ नंबर में प्लूरल, द नंबर में सिंगुलर. सो अ नंबर ऑफ काउस आर ग्रेजिंग. इकोनॉमिक्स अगेन एस है बट सब्जेक्ट का नाम है ना, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो क्या होगा? सिंगुलर. इकोनॉमिक्स इज इजी, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन आफ्टर वी नो द रूल्स. ओके, ईदर ही और आई एम. whenever there is this structure either he or I, तो ये वाला देखो I के साथ जो जाएगा वो आंसर है. either he or I am mistaken. okay okay, everyone. अब देखो ये हमारा everyone ये सिंगुलर फॉर्म है, राइट, हैज एन s but is singular. ये प्लूरल फॉर्म है,
everyone, one है मतलब singular, we are treating them separately as tiny segments, so this will take up the singular verb. Everyone makes a mistake. Okay, अब देखो bread and butter, this is usually people get confused. ये सारी चीजें एक यूनिट होती हैं, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, शूज एंड सॉक्स, ऐसी चीजें जो पेयर में चलती हैं वो उनको हम सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, राइट? वो एक साथ जाते हैं पेयर में. सो ब्रेड एंड बटर इज माई मील. अब देखो द जूरी, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूनैनिमस, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जाते हैं तो सिंगुलर. तो जूरी वॉज यूनैनिमस, वर नहीं. वर कब होता है? अगर दे आर डिवाइडेड. द जूरी वर डिवाइडेड. ओके. स्टेटिस्टिक्स अगेन एस है बट सब्जेक्ट है, आर नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा. स्टेटिस्टिक्स इज ट्रिकी. ओके. ईच ऑफ अस मतलब बहुत सारे लोग हैं हम, बट रेफर मैं एक एक को एक बार में कर रही हूँ, यू 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 इस तरह से. तो ईच ऑफ अस, तो एक बार में एक. सो ईच ऑफ अस हैज अ पेन, हैव नहीं, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू दीज सेगमेंट्स. ऐसा बहुत सारे लोग हैं बट एक बार में मैं एक जन को ले रही हूँ. दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके. ओके, दिस इज योर होमवर्क. जो भी हमने डिस्कस किया है ये उस पे ही बेस्ड है. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताना उसके बाद, ताकि हम we'll see if you are getting all your answers correct. What have you actually understood from this session? It will help me understand if everything is fine. See, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना. मैंगो सब्जेक्ट है कि क्वालिटी सब्जेक्ट है? दिस अ ट्रिकी वन. ठीक है. राइस एंड करी हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर. देखो क्वेश्चंस, पॉलिटिक्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, all the concepts have already been covered. Now this is for you, those 5 questions, and these are the challenger questions. These are slightly a notch higher. तो अगर आपकी वहां की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में आंसर बताना. उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि सही आंसर क्या है और क्या नहीं है. ठीक है. So make sure you put in the answers in the comments, and before that just go through this video once again so that you can take notes if you want, or if you want to remember stuff, then definitely take notes and then go through it again and again. समझ आ जाएगा आपको. Okay. So क्या की टेक अवेज था? Each and every is always singular. यहाँ पे as well as आता है, ये डिस्ट्रैक्टर वाला है. They do not change the verb. वर्ब हमेशा पहला वाला ही होता है जो स्टार्ट जहां से हमने किया था. राम as well as his friend, the captain, along with the players. तो पहला वाला जो था. ठीक है. Check the nearest subject for neither nor. Either he or I am to be blamed. Either or, neither nor. Not only but also भी same है. Nearest subject देखते हैं, but also के बाद जो है. ठीक है. Collective nouns, it depends on unity versus division, right? एक साथ जा रहे हैं सिंगुलर, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लूरल. बस यही हमारे की टेक अवेज थे. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके. सो आई होप यू मास्टर्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगा होगा फर्स्ट टाइमर्स को भी. इफ यू कंप्लीट दिस थरली, 60 to 70% questions you can easily nail in any exam that you are appearing for. This I can say for sure. Definitely 20-30% there are always tricky questions. We need to keep learning, keep practicing through mocks and stuff, but mostly your questions will stand covered after you have mastered these basics. Okay, I hope this has been helpful. Thank you so much for tuning in. Definitely don't forget to put the answers in the comments for homework and the challenges section, and I'll see you in the next one.